want to begin by telling you about someone who preached about the second coming of Christ. मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ उसके विषय में, परमेश्वर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में। And he preached it more than 4,000 years ago. और उसने यह प्रचार 4000 वर्ष से भी अधिक समय पहले किया है। You know, we've thought that the second coming of Christ is preached only after the days of the apostles. चेलों के पश्चात हम ये जानते हैं कि उसका आगमन निकट है। But we read that in the book of Jude about someone who preached about the second coming of Christ more than 4,000 years ago. लेकिन यहूदा के पुस्तक में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन उसके यहाँ से आज से 4000 साल पहले, Nearly about 5,000 years ago. कदाचित 5000 साल पहले, In the days of Adam. आदम के दिनों में, When Adam was alive, जब आदम जीवित था, there was a man preaching the second coming of Christ. एक मनुष्य था ये प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में प्रचार करता था। Quite amazing. ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। You read that in the book of Jude. ये यहूदा के पुस्तक में हम पढ़ते हैं। Jude is speaking about all the wickedness there is in the world. यहूदा ये बताता है कि जो भी बुराई दुष्टता इस जगत में हो रही है। And by the end of the first century, a lot of corruption had come into the church also. और पहले शताब्दी के समाप्त होने तक बहुत सी बुराई कलीसिया में भी आ चुकी थी। He speaks about certain people in the church, verse 11, who are going the way of Cain. Verse 11. 11वां वचन हम पढ़ेंगे, Who are going the way of Cain. जो कनान की ओर जा रहे थे। Not Canaan. कैन। जरा पढ़िए वहाँ. अच्छा। उन्हें धिक्कार है क्योंकि उन्होंने कैन का, The way of Cain. कैन के रास्ते से जा रहे थे वो लोग, And going in the error of Balaam. और ये बुराई के रास्ते में जा रहे थे दिन भर। The error of Balaam. हाँ, बलाम के जैसे वो गलती कर रहे थे, And the rebellion of Korah. और कोराम के जैसे विरोधी बन गए थे। See, there were people in the church who are going in these wrong directions. देखिए कलीसिया के लोग कैसे गलत रास्ते में जा रहे हैं। And he says they are like hidden reefs in your love feast, verse 12. और वो 12 वचन कहता है, ये मनुष्य समुद्र तल की छिपी चट्टान है। And about these people, verse 14, Enoch, the seventh from Adam, prophesied. और ऐसे लोगों के लिए हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में एक भविष्यवाणी करता है। You know what he said? आप जानते हो क्या कहता है? The Lord is going to come with many thousands of his holy ones. वो यह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है अपने अनेक लाखों पवित्र जनों के साथ। When is that going to happen? ये कब होने वाला है? That is the second coming of Christ. ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। You know, Adam lived for 930 years. आदम 930 साल जिया। And Enoch was born when Adam was still alive. जब हनोक जन्मा तब आदम जीवित था। And during Adam's lifetime, और आदम के जीवन काल में Enoch was preaching about the end of the world. हनोक उस समय प्रचार कर रहा था संसार के अंत का। How the Lord will come and will judge, verse 15. 15वें वचन में कैसा प्रभु यीशु मसीह आएगा और जगत का न्याय करेगा। And what's he going to judge? What is he going to judge? वो क्या न्याय करने वाला है? All the ungodly, verse 15, of their ungodly deeds, which they have done in an ungodly way, and all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके सब अभक्ति के कामों को जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। These are grumblers, verse 16, finding fault, following after their own lust, speaking arrogantly, flattering people for the sake of gaining an advantage. और 16 वचन कहता है, ये कुड़कुड़ाने वाले, दोष ढूंढने वाले, अपनी वासनाओं के अनुसार चलने वाले, घमंड भरी बातें करने वाले और अपने लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करने वाले लोग हैं। Enoch was the first preacher in the Bible. हनोक पहला प्रचारक था बाइबल में। He was a prophet. वो एक भविष्यवक्ता था। And his subject was the second coming of Christ. और उसका विषय था प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। And he preached against sin. और उसने पाप के विरोध में प्रचार किया। The first preacher in the Bible preached against sin.
बाइबल में पवित्र शास्त्र में पहला प्रचारक जिसने पाप के विरोध में प्रचार किया। There are very few people who preach against sin today. आज बहुत कम लोग हैं जो पाप के विरोध में प्रचार करते हैं। There are so many other subjects they preach on. वे बहुत से अलग विषयों में प्रचार करते हैं। Remember, the first preacher in the Bible preached against sin. याद रखिए, पहला प्रचारक पवित्र शास्त्र में पाप के विरोध में प्रचार करता है। And all the prophets in the Old Testament preached against sin. और जूने करार में सब जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने पाप के विरोध में प्रचार किया। They preached about judgment. और उन्होंने न्याय के विषय में प्रचार किया। Wasn't God a loving God in the time of Enoch? हनोक के समय में क्या परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर नहीं था? Yeah. हाँ, He loved the world so much that he hated their sin. वो जगत से इतना प्यार करता है कि वो पाप से घृणा करता है। It's like, you may love your son so much, but you hate the disease in his body. ये ऐसा है कि जैसा आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसके शरीर में किसी बीमारी से आप बहुत ही घृणा करते हैं। You're not a good father if you don't hate disease in your children. आप अच्छे पिता नहीं है अगर आपके बच्चों के शरीर में जो कोई बीमारी है उसके प्रति आप And घृणा नहीं रखते। the more you love your children, the more you'll hate the disease in their children. और जितना आप अपने बच्चे ज्यादा प्यार करते हैं उतना ही उसके शरीर में बीमारी से आप ज्यादा घृणा करते हैं। So a God who doesn't hate sin cannot be the true God. और वह परमेश्वर जो पाप से घृणा नहीं करता वह परमेश्वर नहीं हो सकता। And a preacher who represents God and does not preach against sin is a false preacher. और वह प्रचारक जो पाप को प्रचार नहीं करता विषय में विरोध में, वो सच्चा प्रचारक नहीं है। And that's what we can learn from Enoch. यह हम हनोक के द्वारा सीख सकते And हैं। he's mentioned here in the almost the last book of the Bible पर पवित्र शास्त्र के आखिरी पुस्तक में वह यहाँ बताता है about Enoch. हनोक के विषय में, How he preached about the second coming and judgment that's going to come. न्याय जो होने वाला है और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में। And he preaches about people who go, as we see, verse 11, in the error of Balaam. और वो प्रचार करता है 11वें वचन के अनुसार बालम के गलती के विषय And the में way of Cain. और कैन के रास्ते में And the rebellion of Korah. और कोराम का विरोध करने वाले विषय में। These are things you will see in the church in the last days. और ये बातें कलीसिया में अंत के दिनों में हम देख सकते हैं। The way of Cain is the way of jealousy of other brothers. कैन का विषय ऐसा है कि भाई से जलन रखने वाला। That means God blesses somebody else more than you and you are jealous of him. ये ऐसा है कि परमेश्वर किसी भाई को अधिक आशीर्वादित करता है और आप उससे जलन रखते हैं। Maybe materially, maybe spiritually. संसार की चीजों के विषय में हो सकता है, आत्मिक रीति में हो सकता है। And there's going to be jealousy in the hearts of those who claim to be God's children. जो परमेश्वर के लोग हैं, जन हैं, ऐसा दावा करते हैं, उनके हृदय में भी जलन हो सकती है। Cain killed his brother with a stone. कैन ने अपने भाई को पत्थर से मार डाला। In the last days, people will kill their brothers with their tongue. अंत के दिनों में लोग अपने भाइयों को अपने मुंह से, शब्दों से मारेंगे Because they are jealous. क्योंकि वे जलन रखने वाले लोग हैं। And the other thing you'll see in the last days और दूसरी बात अंत के दिनों में हम देखते हैं is people going by the error of Balaam. और वे बलाम किसी चाल धारण करते हैं। Balaam was a preacher. बलाम एक प्रचारक था। He was in touch with God, वो परमेश्वर के संपर्क में था, the true God, सच्चे परमेश्वर के। because we read that he could hear God speaking to him. क्योंकि हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर को बोलते सुनता था। One day a king called him to give a message. एक दिन एक राजा ने उसे कुछ संदेश देने के लिए बुलाया। Now most preachers today, if a king or a president calls them, they won't even consult God, they'll go straight away. अगर आज के दिन में कोई महाराजा या मंत्री उन्हें आज प्रचारकों को बुलाएगा तो वे परमेश्वर से पूछना भी नहीं चाहेंगे, सीधे चले जाएंगे। Imagine Balaam said, I've got to ask God before I come, and maybe king or anybody, but I got to ask God. विचार कीजिए कि बिलाम ने यह कहा कि मैं परमेश्वर से पहले पूछूंगा, आप राजा होंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। I really respect such a man. I really respect such preachers. मैं ऐसे प्रचारक का आदर करता हूँ। But see what happened to him in a little while. और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। God said, don't go. परमेश्वर ने कहा मत जा। And he sent a message to the king, I will not come, even if you call me. और तब उसने राजा के पास संदेश भेजा कि मैं नहीं आऊंगा, तू मुझे बुला रहा है फिर भी। We really need preachers like that. हमें ऐसे प्रचारकों की आवश्यकता है। But the king knew how to change the minds of these preachers.
राजा जानता था ऐसे प्रचारक का मन कैसा फेरा जा सकता He है, knew that money can change the minds of many preachers. और वो पैसा दिखाकर बहुत से प्रचारकों का मन फिरा सकते So हैं। he sent some more people फिर उस राजा ने कुछ और and लोगों said, को भेजा I'll give you more money. I'll give you plenty of money. और उसने कहा मैं तुझे और ज्यादा बहुत ही पैसे दूंगा। What should Balaam have said? फिर बिलाम ने क्या कहना उचित था? Money or not? I can't come. God's told me not to go. पैसा हो या कुछ भी हो, परमेश्वर ने कहा है मैं नहीं आऊंगा। But he said, okay, I'll ask God again. फिर उसने कहा ठीक है, मैं फिर से परमेश्वर से पूछूंगा। What's the need to ask God again? He's already told you his will. फिर से परमेश्वर को पूछने की क्या आवश्यकता थी जब परमेश्वर ने उसे पहले ही अपनी इच्छा बता दी थी। And he went back to God. और फिर वह परमेश्वर के पास गया, It's all written in Numbers 23. और गणना 23वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, And God said, go. परमेश्वर ने कहा जाइए। Why did God say go? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा जा? Because he saw in Balaam's heart, he loved money so much that he wanted to go. क्योंकि परमेश्वर ने बिलाम का हृदय देखा और हृदय में पैसे से प्रेम देखा, तब परमेश्वर ने उसे अनुमति दी जाने की। God said, if he wants to go and make money, let him go. I won't stop him. और परमेश्वर ने कहा अगर तू पैसा कमाना चाहता है और जाना चाहता है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। That's why he doesn't stop so many preachers today who are running after money. इसलिए आज भी परमेश्वर ऐसे अनेक प्रचारकों को रोकता नहीं है जो पैसे से प्रेम करते हैं। He doesn't shut down all these television programs which are begging for money. और कितने टीवी पर प्रोग्राम है जो पैसे के लिए भीख मांगने जैसा करते हैं, उन्हें बंद नहीं करता। Do you think it's difficult for God to shut them all down? You think it's difficult for God to shut them all down? क्या आपको ये लगता है कि परमेश्वर के लिए ये कठिन है इन सब कामों को बंद कर देना? No, let them go. नहीं। Even Balaam's donkey knew that he was going in the wrong direction. बलाम के गधे को भी यह पता था कि वो गलत रास्ते में जा रहा है, But he went. पर वो गया। And finally, you see the end of Balaam, he destroyed himself. और हम अंत में देखते हैं कि बलाम ने अपने आप को त्याग दिया। In the last days, there will be preachers like that in the church. अंत के दिनों में ऐसे ही प्रचारक कलीसियाओं में होंगे। And the third type of people mentioned are those who perished in the rebellion of Korah, verse 11. और तीसरे लोग ऐसे रहेंगे जो कोरह के समान विरोध करके नाश हो जाएंगे। There'll be a lot of people in the church in the last days who got a spirit of rebellion against authority. अधिकारियों के विरोध में अधिकारियों का विरोध करने वाले ऐसे लोग अंत के दिनों में कलीसियाओं में पाए जाएंगे। Who want to be independent, वे आजाद रहना चाहते हैं, who don't want to listen to anybody. वे किसी भी का भी सुनना नहीं पसंद करते। I tell you, the churches are full of young people like that today. मैं आपसे कहता हूं कि कलीसियाएं ऐसे जवानों से भरी पड़ी है। Most churches, the young people have taken over the church. बहुत से कलीसियाओं को ऐसे जवान लोगों ने ले लिया है। They determine what type of music the church should have. वे ये कहते हैं कि उन्हें करके दिखाते हैं कि कौन सा म्यूजिक उन्हें पसंद है। And the poor pastor, even if he disagrees, he's got to shut his mouth. और गरीब प्रचारक पास्टर चुप रहता है। So, we see these things are there in the last days. और हम देखते हैं कि अंत के दिनों में ऐसी चीजें हमें दिखाई देंगी। And here and there in the last days, God will have a man like Enoch preaching against all this. और यहाँ या वहाँ अंत के दिनों में परमेश्वर हनोक जैसा प्रचारक को खड़ा करेगा। There will be Cains and Balaams and Korahs plenty. कैन जैसे लोग वहाँ रहेंगे, बिलाम जैसे लोग वहाँ रहेंगे, कोरह के जैसा वहाँ लोग रहेंगे। The Enochs will be rare, हनोक बहुत कम रहेंगे, but there will be a few पर कुछ रहेंगे around the world. पूरे दुनिया में। God will never leave himself without a witness on the earth. परमेश्वर अपने आप को इस पृथ्वी पर किसी को गवाह किए बिना छोड़ेगा नहीं। And my prayer is that if God doesn't find men like that, that he will raise up women like that. और मेरी इच्छा यह है कि अगर परमेश्वर को ऐसे पुरुष नहीं दिखते तो परमेश्वर स्त्रियों को खड़ा करेगा। You say, Brother Zach, you believe in women preachers? आप कहोगे भाई जैक, आप स्त्रियों के प्रचार के विषय में विश्वास करते हो? Sure, if there are no men, God will raise up a Deborah to be a prophetess. निश्चय ही अगर कोई मनुष्य नहीं है, पुरुष नहीं है, तो परमेश्वर स्त्री को खड़ा करेगा। And that'll be a shame. और that ये एक me- लज्जा की बात होगी That the men are so useless that God has to raise up a woman. कि मनुष्य इतने निकम्मे हो गए हैं कि परमेश्वर को स्त्रियों को उपयोग करना पड़ रहा है। That is the condition that's happening in the world today. ये दुनिया में हो रहा है। We need to hear that message that comes from people like Enoch. हमें ऐसे संदेश को सुनना है जो हनोक जैसे प्रचारक के द्वारा हो। Enoch doesn't preach about your healing and your prosperity. हनोक ने आपकी चंगाई और आपकी
भरभराहट के विषय में प्रचार नहीं किया। He preaches about judgment from God against sin. उसने यह प्रचार किया पाप के विषय में परमेश्वर का न्याय। Ungodly words that we speak. अनगॉडली मतलब परमेश्वर रहित जो बातें हम कहते हैं। Sinful words. सिंफुल पाप के शब्द हम जो कहते हैं, Which you speak at home to your wife or your husband. हम अपने पत्नी से और पति से घरों में Or कहते which you हैं, speak in the train when you travel or when you're sitting in an office. या आप अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं या ट्रेन में प्रवास करते हैं। Ungodly, sinful words, पापमय शब्द, sinful actions. पापमय क्रियाएं, There's going to be a judgment of all of them. उन सब का एक दिन न्याय होगा। Against all those who grumble, verse 16. और उनके विषय में जो कुड़कुड़ाते थे, God's going to judge all that. परमेश्वर उन सब का न्याय करेगा। Now you can be sure that such Enochs are not going to be very popular. और Such preachers. ऐसे प्रचारक बहुत प्रशंसा पाए हुए नहीं रहेंगे। But there's a condition पर एक वहाँ शर्त है to be such a preacher. ऐसा प्रचारक होने के लिए, He has to walk with God every day. उसे परमेश्वर के साथ हर दिन चलना होगा। It's very interesting that the first prophet in the Bible is also mentioned as the first person who walked with God. और पहला प्रचारक परमेश्वर के वचन में पहला प्रचारक वो परमेश्वर के साथ हर दिन चला। I told you that Enoch lived when Adam was still alive. मैंने आपसे कहा कि हनोक उस समय जन्मा जब आदम जीवित था, And I'm sure he met Adam. और मुझे ये विश्वास है कि वो आदम से मिला था। And he must have asked Adam, और उसने आदम से पूछा होगा, how is it, Adam, when you were in Eden and you walked with God? ये कैसा था आदम कि जब आप आदम की वाटिका में परमेश्वर के साथ चलते थे? And Adam would have said, it wasn't very long, but it was very wonderful. और आदम कहेगा बहुत ही अच्छा था, ज्यादा समय नहीं रहा लेकिन बहुत ही उम्दा था। And Enoch must have asked him, don't you have a desire to walk with him now? और हनोक ने पूछा होगा आदम से, क्या अब आपकी इच्छा नहीं है परमेश्वर के साथ चलने की? You experienced that wonderful thing in Eden. क्योंकि ऐसे भले और अच्छे अनुभव को आपने आदम की वाटिका में अनुभव किया है। I don't know what Adam said. Maybe he said, no, I don't have faith that I can walk with God here now. हो सकता है, मुझे पता नहीं, उसने कहा मुझे अब विश्वास नहीं परमेश्वर के साथ चलने पर। In Eden it was possible. Now we are outside. How can we walk with God? हाँ, उसने यह हो सकता है कहा होगा आदम की वाटिका में यह संभव था, अब हम आदम की वाटिका से बाहर हैं, ये कैसा संभव हो सकता है? It's just like a lot of people say today, in this sinful world, how can you overcome sin? It's not possible. ये ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग आज कहते हैं कि इस पापमय जगत में हम पाप के बिना कैसे रह सकते हैं? No, we can't walk with God now. आज हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। But Enoch said, I'm not going to listen to Adam. और हनोक ने कहा कि मैं आदम के जैसा नहीं He चलूंगा, sought God himself. लेकिन उसने परमेश्वर को खुद चाहा। Remember, he had no Bible, no promise, nothing. याद रखिए कि उसके पास कोई पवित्र शास्त्र नहीं था, कोई वायदा परमेश्वर का नहीं था, But he sought God. पर उसने परमेश्वर की इच्छा And रखी। God is a rewarder of all those who diligently seek him, और परमेश्वर उन सबको प्रतिफल देता है जो हृदय से उसकी खोज करते हैं, even if they don't have a Bible. उनके पास पवित्र शास्त्र नहीं रहने पर भी। I tell you, this man challenges me. ये मैं आपसे Enoch. बताता हूँ कि हनोक मेरे लिए एक उत्साह है। What a man he was. No meetings, no fellowship, no Bible, but he began to seek God. कोई सभाएं नहीं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं, फिर भी वो परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा करने के लिए चलने वाला। And he got a revelation from God that you can walk with God even outside of Eden. और उसने परमेश्वर से प्रकटीकरण पाया कि वह आदम की वाटिका के बाहर भी परमेश्वर के साथ चल सकता But he है। had to have a crisis in his life before that happened. और ये होने से पहले उसके जीवन में मसीह होगा। We read in Genesis chapter 5 उत्पत्ति इसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं that Enoch lived for 65 years and he did not walk with God. कि हनोक 65 साल चला और परमेश्वर के साथ नहीं रहा। Verse 21. 21वें वचन में, But when he was 65 years old, he got a child. लेकिन 65 वर्ष की आयु में उसे एक बच्चा हुआ। Now, I want to imagine what happened there at that time. हम ये विचार नहीं कर सकते उस समय ऐसा क्या हुआ होगा। We can use our imagination and think what happened. हम अपनी विचारधारा लड़ा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। Here's a man, I don't know how long he was married, and he's got no children, right up to 65. मैं नहीं जानता उसकी शादी कभी हो गई, लेकिन यह है कि 65 साल में उसका पहला संतान हुआ। And at the age of 65, he gets his first child. और 65 वर्ष की आयु में उसका पहला बच्चा हुआ। And God gives him a revelation there. परमेश्वर ने उसे वहां एक प्रकटीकरण दिया। Now, I read somewhere, you see, we don't know what is the meaning of Methuselah.
We don't know what is the meaning of that name उसके पहले बेटे का नाम मतुशेलह था, उसके नाम का अर्थ मैं नहीं जानता। because they didn't speak Hebrew those days. उन दिनों हिब्रू बात नहीं करते थे, I don't know what language they spoke. मुझे पता नहीं वे कौन सी भाषा बोलते थे, But children very often had meanings to their names. लेकिन In those अक्सर days. उन दिनों में अक्सर करके बच्चों के नाम का अर्थ रहता था। Even Isaac had a meaning to his name. आज इसहाक के भी नाम And को अर्थ था, Esau, Jacob, all there were meanings to their name याकूब, इनके सब नामों को अर्थ था according to something that God revealed. उस तरह से जैसा परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया So था। I believe that God revealed to Enoch, और मैं ये सोचता हूँ कि जब परमेश्वर ने हनोक पर प्रकट किया, you're going to have a child now. आपको एक अब बच्चा होने वाला है, Yeah. आपको एक बच्चा होने वाला है, And when that child is born, और जब वो बच्चा होगा you got to name him Methuselah, और उसका नाम आप मतुशेलह रखना, meaning अर्थ when he dies, the judgment will come. जब वो मरेगा तब न्याय होगा, And that's what happened. और वैसा ही हुआ। Methuselah lived for 969 years. और मतुशेलह 969 वर्ष जीवित रहा, But Enoch did not know that he's going to live for 969 years. और हनोक को यह पता नहीं था कि वह 969 वर्ष जीवित रहेगा। If you have a child, you don't know how long that child is going to live. आपके पास अगर बच्चा है तो आप नहीं जानते वो कितने वर्ष जीवित रहेगा, It may die at 6 months. हो सकता है वो 6 महीने में मर जाए। Can you imagine the effect it had on Enoch? आप सोचते हैं कि उसका असर हनोक पे क्या होगा? When this child dies, judgment is going to come on the world. जब यह बच्चा मरेगा तब जगत का न्याय होगा। And if you calculate there, you find that the year Methuselah died, the flood came. और जब आप हिसाब लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि मतुशेलह जिस वर्ष मरा उस समय परमेश्वर ने But बाढ़ से पूरे देश को, दुनिया को डुबा दिया। Enoch did not know that when he looked at that baby. पर हनोक यह नहीं जानता था जब वह उस बच्चे की ओर देखता था। So whenever that baby got sick, Enoch would say, "Hey, is this the end?" और जब वो बच्चा बीमार होता होगा तो हनोक सोचता होगा क्या यह अंत का दिन है? You know, put yourself in this place. Sometimes it's good for us to put ourselves in the place of that man in the Bible. अब आप अपने आप को इस स्थान पर रखकर देखो, कई बार ये अच्छा है हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के स्थान पर Imagine रखकर if देखें। you were in Enoch's place अगर आप उस जगह पर होते and you had a child. और अगर आपका बच्चा होता God tells you, और परमेश्वर आपसे कहता when है this child dies, that's the end of the world. जब यह बच्चा मरेगा उस दिन दुनिया के अंत का दिन होगा। I tell you, it will really change your life. मैं आपसे कहता हूं कि यह आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा। Every time your child gets a cough or a cold, you'll start taking life seriously. और जब आपके बच्चे को खांसी होगी, जुकाम होगा, तो अपने जीवन को आप बहुत गंभीरता से लेने आरंभ करेंगे। And you know how children get sick so frequently. और आप जानते हैं कि बच्चे कैसे लगातार बीमार पड़ते हैं। Enoch began to take his life seriously because he believed in judgment. हनोक ने अपने जीवन को गंभीरता से लिया क्योंकि वह न्याय को जानता था, विश्वास करता था। Any person who believes in the judgment of God will take his life seriously. वह हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के न्याय को गंभीरता से लेता है वह अपने जीवन को बहुत गंभीरता से That's जिएगा। what we learned from Enoch. यही है हम हनोक से सीख सकते And हैं। he preached what he had learned in his life. और जो उसने अपने जीवन में सीखा उसका उसने प्रचार किया। And not only that, और यही नहीं, can you imagine if you had a child whose name was like this? और आप विचार कर सकते हैं एक बच्चा जिसका नाम ऐसा है, When he dies, judgment will come. वह मरेगा उस दिन न्याय हो जाएगा जगत का। Imagine calling him. Supposing you call him one day. विचार कीजिए आप उसको एक दिन बुला रहे हैं, Hey, come here. When you die, judgment will come. आप यहाँ आओ, जिस दिन तू मरेगा उस दिन जगत का न्याय होगा। He's reminding himself of that every day, वो अपने 30, 40 times. अपने आप को याद दिलाता है हर दिन इस बात को। He cannot forget because every time he calls his child, he remembers, hey, judgment is going to come. यह हर बार होता था क्योंकि वह हर बार अपने बच्चे को बुलाता होगा और उसे याद आता होगा कि न्याय होने वाला है। That's why he preached it. इसलिए उसने पाप के विरोध में He प्रचार preached किया। about the second coming of Christ and the judgment that's going to come. परमेश्वर का, यीशु मसीह का दूसरा आगमन और न्याय का उसने प्रचार किया। There's a verse in Ecclesiastes after Proverbs. हाँ, उपदेशक में एक वचन है, Ecclesiastes and chapter 8 8वां अध्याय में and verse 11. 11वां वचन। It's a very interesting verse. इस That because the judgment against an evil action
is not executed quickly, therefore the hearts of all men are given fully to do evil. इसलिए कि बुरे कार्य का दंड शीघ्र नहीं दिया जाता, उनके बीच रहने वालों का मन बुराई करने में पूर्णतः लिप्त रहता है। You know why we sin so much? आप जानते हैं कि हम ज्यादा पाप क्यों करते हैं? Most people say, brother, I'm so weak, I can't overcome this sin. बहुत से लोग ये उत्तर देंगे कि भाई मैं बहुत ही कमजोर हूं, मैं पाप पर जय नहीं पा सकता। That's not the reason. ये कारण नहीं है। The reason is given here. The judgment does not come immediately. उसका कारण यहाँ लिखा है कि उसका न्याय जो हम पाप करते हैं जल्दी शीघ्रता से नहीं होता। Let's take the matter of anger. सचो हम एक पाप के विषय, क्रोध के पाप के विषय में सोचेंगे। Many people say, I try, I can't get victory over my anger. बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन अपने क्रोध पर विजय नहीं पा सकता हूँ। But supposing from tomorrow, लेकिन विचार करें कल से, every time you got angry, your tongue got little paralyzed. कल से अगर आप थोड़ा भी क्रोध करेंगे और आपकी जबान को लकवा मारेगा, And you got angry a second time on the day, again, little more paralysis on your tongue. दूसरी बार आप दूसरे दिन दूसरी बार जब पाप करेंगे फिर ज्यादा लकवा आपके जीभ को मारेगा। You'll get victory over anger in 24 hours. आप क्रोध पर 24 घंटे में विजय पा लेंगे। I tell you, मैं आपको कहता हूँ, you who have not got victory for 24 years, in 24 hours you'll get victory. मैं आपसे सच कहता हूँ कि जो आपने 24 साल में विजय नहीं पाई ऐसे पाप पर, आप But- 24 घंटे में पा लेंगे। This verse is so true ये वचन इतना सच्चा है because the judgment doesn't come immediately. क्योंकि न्याय शीघ्रता से नहीं किया जाता। That doesn't mean it will never come. इसका मतलब यह नहीं कि वो कभी नहीं होगा, It will come. वह होगा। There is an account being kept. एक हिसाब रखा जा रहा है। And the Bible says in Revelation 20, the books will be opened and every single thing will be judged. और प्रकटीकरण के 20वें अध्याय में लिखा है कि पुस्तकें खोली जाएगी और हर एक बात का हिसाब लिया जाएगा। Or take another matter. और दूसरा विषय हम लेंगे। Many men say, oh, this lusting with the eyes, I just can't conquer it. और बहुत से लोग कहते हैं कि आंखों से कामुकता वासना करना, इससे मैं विजय नहीं पा सकता। And many young men who look so holy and sing in the church, they are watching internet pornography when they are alone. और बहुत से जवान जो कलीसिया में आकर स्तुति आराधना करते हैं, वे इंटरनेट पे गंदे चित्र देखते हैं। But imagine every time you lusted with your eyes, पर आप विचार करें कि हर पल जब आप अपनी आंखों से को वासना करते हैं looking at a woman or on the internet, और किसी स्त्री को देखकर या अश्लील चित्र देखकर, you found your eyes became a little blinder. और तब आप अनुभव करते हैं कि आपकी आंखें थोड़ी और धुंधली हो जाती हैं And by the end of the day, you can hardly see properly. और पूरे दिन के अंत तक आप शायद ही देख सकते हैं। You will stop your internet pornography in 24 hours or less than that. और 24 घंटे में आप वो अश्लील चित्र देखना बंद कर दोगे। You will stop lusting after women in 24 hours. आप 24 घंटे में स्त्रियों को कामुक और वासना से देखना बंद कर दोगे। Where did you suddenly get all the strength to overcome sin? ये सब शक्ति आपको अचानक कहाँ से आ गई पाप पर जय पाने की? One thing, एक ही चीज से, you realize the judgment of God is real. जब आप ये महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का न्याय सच्चा है, That God hates sin. कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। And that's what the devil doesn't want you to know. और यही है शैतान चाहता कि आप उसे इस बात को नहीं जाने, He keeps telling you, no, it'll never happen. और वो आपसे कहते रहता है कि यह कुछ होने वाला नहीं है। That's what he told Eve. जो यही उसने हवा से भी कहा। The first lie in the Bible. Do you know what the first lie in the Bible is? पहला बाइबल के अंदर झूठ क्या है आप जानते हैं? God will not judge sin. परमेश्वर पाप का न्याय नहीं करेगा। That is the first lie in the Bible. बाइबल के अंदर पहला ये झूठ है। You will not die, Eve. Nothing will happen. हवा तो नहीं मरेगी, कुछ होने वाला नहीं है। No, God is a loving God. If you sin also, He's not going to take it so seriously. परमेश्वर झूठा परमेश्वर है, तू पाप भी कर सकती है और जीवित रहेगी, Because He loves you so much. क्योंकि वह तुझसे बहुत प्यार करता है। And that lie the devil has been telling believers for hundreds of years now. और यही झूठ शैतान विश्वासियों से 100 And- सालों से कहते आ रहा है। Don't you feel that you also have believed the devil's lie just like Eve? जैसे हवा ने उस शैतान के बहकावे को ग्रहण कर लिया था, कि आपने भी ग्रहण कर लिया है? I say there are only two places you have to go to see how serious sin is in God's eyes. दो ही जगह है जिसमें आप देख सकते हैं कि पाप कितना गंभीर है परमेश्वर की नजर में। Go to Eden, Genesis 3.
उत्पत्ति 3 अध्याय में आप आदम की वाटिका में जाइए Go to Eden and you'll see how serious sin is. और आदम की वाटिका में जाकर देखिए कि पाप कितना गंभीर One है। sin. एक पाप, It was so serious that God put them out of paradise immediately. और इतना गहरा था, इतना भारी था कि परमेश्वर ने उन्हें आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया। God means what he says. परमेश्वर का जो वह कहता है वैसा ही है। If he says he's going to judge, he will judge. वह कहता है मैं न्याय करूंगा तो वह न्याय करेगा। The second place you can find it और दूसरी जगह जब यह इसे आप देख सकते हैं is on Calvary. और कैलवरी क्रूस पर, There you can see how seriously God takes sin. और वहां आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पाप को कितनी गंभीरता से लिया है। You know, we sing so lightly about the cross. हम देखते हैं हम क्रूस को कितना हल्की रीति से लेते हैं, We sing about it. हम उसके लिए गाते हैं। We don't see the cross as the place where God shows he hates sin. और क्या आप ये नहीं विचार करते कि क्रूस ये दर्शाता है कि That पाप से परमेश्वर कितना sin घृणा has करता to be है, judged. कि पाप का न्याय होना अवश्य If है। you don't get it, then Jesus has to get it. अगर आपने ये नहीं लिया इसका दंड तो यीशु को लेना पड़ा, Either he or you. या आप या उसे, And because to save you from it, he took it. और आपको बचाने के लिए उसने वह दंड ले लिया। If he hadn't taken it, you and I would have got it. अगर उसने वह नहीं लिया होता तो आपको और मुझे यह दंड लेना What पड़ता। judgment? परमेश्वर का न्याय, What judgment? क्या न्याय क्या है? Forsaken by God for eternity. Forsaken by God for eternity. त्याग दो से अनंत काल से, Separated from him. उससे अलग कर दो, But because he took it, पर उसने उसे लिया so we are safe. और हमारा उद्धार हुआ, हम बच गए। We don't meditate enough on the judgment of God on Calvary. परमेश्वर का क्रूस पर न्याय को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, The devil just thinks, oh, God loves me so much. और शैतान हमें भ्रम में रखता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता I है। see the love of God for me on Calvary. परमेश्वर का प्रेम कैलवरी पर देखो मेरे लिए, It's true. ये सच्चाई है। I want to exhort all of you to see the judgment of God on Calvary. मैं आप सबको उभारना चाहता हूँ कि आप देखो कि परमेश्वर का न्याय कैलवरी पर, You have seen enough of the love of God on Calvary. आपने परमेश्वर का प्रेम कैलवरी पर बहुत देख लिया See है। the judgment of God on sin on Calvary. परमेश्वर का न्याय पाप के विरोध में कैलवरी पर आप देखिए, Then you will realize how तब- serious sin is. तब आप महसूस करेंगे पाप कितना गंभीर So है। Enoch realized that when he had this little baby. हनोक ने यह महसूस किया जब उसका वह छोटा बच्चा था, And when he realized that God is going to judge sin, और जब उसने यह महसूस किया कि परमेश्वर पाप के विषय न्याय करेगा, what is the result? उसका नतीजा क्या निकला? We read in Genesis 5, verse 22, उत्पत्ति 5वां अध्याय इसके 22वें वचन में हम पढ़ेंगे, that Enoch walked with God. हनोक परमेश्वर के साथ चला। That was the result of his believing that God's judgment will come on sin. परमेश्वर का न्याय पाप के विरोध में होगा, वह देखकर वह परमेश्वर के साथ चला। The day you believe that God will judge every sin, you will also start walking with God. जिस दिन आप ये विश्वास कर लोगे कि परमेश्वर पाप का न्याय करेगा, उस दिन आप परमेश्वर के साथ चलने लगोगे, And you can walk with God like Enoch. और आप परमेश्वर के साथ जैसे हनोक चल सकते हैं। Enoch was not a hermit or a sannyasi. और हनोक कोई सन्यासी या कोई अलग व्यक्ति नहीं था। He didn't go into the forest and live there to walk with God. परमेश्वर के साथ चलने के लिए वह कोई जंगल में नहीं चला गया। No, it says he lived as a family man. In 5:22, it says he walked with God and he had sons and daughters. और 22 वचन में पढ़ते हैं कि मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, तथा उसके और भी पुत्र और पुत्रियां हुई। He lived a normal family life and he had many sons and daughters and he walked with God. और उसने एक साधारण जीवन जिया जिसमें उसे और भी बच्चे बच्चियां हुए, परमेश्वर के साथ जिया। He lived with his wife at home उसने अपनी पत्नी के साथ घर में and he रहा, had many sons and daughters और उसके और भी बेटे और बेटियां हुई। during those 300 years, and he was also walking with God. और उन 300 सालों में लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के साथ चलता था। Can you walk with God when you have sons and daughters? क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हैं जब आपके बच्चे पुत्र और पुत्रियां हैं? Sure, बिल्कुल, you can walk with God. आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। You can live a normal life on this earth. आप यहाँ पृथ्वी पर एक साधारण जीवन जी सकते हैं। I can imagine that Enoch was a farmer and he went out farming to produce food for his family. मैं ये विचार करता हूँ कि हनोक एक किसान रहा होगा, वह जाता होगा, खेती करता होगा, अपने परिवार के लिए अन्न लाता होगा। Those days everybody was a farmer or a shepherd or something. उन दिनों में हर एक किसान था या तो चरवाहा था। And so Enoch had some type of job by which he supported his family. और हनोक के पास कुछ काम था जिसके द्वारा अपने परिवार की देखभाल करता था। He supported his family and he preached judgment. He preached the truth.
और उसने अपने परिवार को संभाला और उसने सच्चाई का न्याय का प्रचार किया। And that's the example for the last days. और ये अंत के दिनों के लिए उदाहरण है For you and me, हमारे और आपके लिए, that we walk with God, we proclaim judgment on sin, और हम पाप का न्याय के विषय में दावा करेंगे और परमेश्वर के साथ चलेंगे। and one day, like Enoch was taken up, we'll be taken up. और एक दिन जैसे हनोक उठा लिया गया, हम भी उठा लिए जाएंगे। That's wonderful. ये बहुत ही उम्दा है। But before he was taken up, पर इससे पहले कि वो उठा लिया जाता, we read in Hebrews in chapter 11, इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके विषय में। you know how he is taken up? आप जानते हैं वो कैसे ऊपर उठा लिया गया? That's not written in Genesis 5. ये उत्पत्ति 5 में नहीं लिखा गया है। Genesis 5, it only says he was taken up. उत्पत्ति 5 केवल यही बताता है कि वो उठा लिया गया। But in Hebrews 11, और लेकिन इब्रानियों की पत्री इसके 11वें अध्याय में it says, verse 5, 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, it was because of his faith that Enoch was taken up. यह उसका विश्वास था जिसके द्वारा हनोक उठा लिया See गया। what it says? By faith, Enoch was taken up. विश्वास के द्वारा हनोक उठा लिया गया। He had faith. उसके पास विश्वास था। God, how can death have power over me when I walk with you? मृत्यु को मुझ पर कैसी प्रभुता होगी अगर मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ? God said, you got such faith? परमेश्वर कहता है इसकी आपके पास इतना बड़ा विश्वास है, And I'll take you up. मैं आपको उठा लूंगा। Death will have no power over you. मृत्यु के आपके ऊपर कोई प्रभुता नहीं होगी। Oh, I tell you, that guy's faith challenges me. और मैं आपसे कहता हूं कि उस हनोक का विश्वास मुझे उत्साही करता है। All around him, people had died. Around him. उसके चारों ओर बहुत लोग मरे। See, you must read Genesis 5 like this. उत्पत्ति 5 आपको इस तरह से पढ़ना है। Let me read Genesis 5 to you again. हम आपके लिए उत्पत्ति 5वां अध्याय फिर से पढ़ेंगे। Genesis chapter 5, उत्पत्ति इसका 5वां अध्याय, verse 5. 5वां वचन। Adam lived 930 years and he died. आदम 930 वर्ष जिया और मर गया। Verse 8. Verse 8. वर्ष 8वां वचन। Seth lived 912 years and he died. शेत 912 वर्ष जीवित रहा और मर गया। Verse 11. 11वें वचन में Enosh lived 905 years and he died. एनोश 905 वर्ष जीवित रहा और मर गया। Verse 14. 14वें वचन में Canaan lived 910 years and he died. केनान 910 वर्ष जीवित रहा और मर गया। Verse 17. 17वें वचन में Mahalalel lived 875 years and he died. 95 years and he died. महलेल 895 वर्ष जीवित रहा और मर Verse गया। 20. Jared lived 962 years and he died. 19वें वचन में हनोक 20. 20वें वचन में येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई तब वह मर गया। And then all of a sudden, one man who didn't die. और अचानक ही एक मनुष्य मरा नहीं। How wonderful it is to see that in a chapter full of death, one fellow is raptured. ये कितना आश्चर्यजनक है कि एक अध्याय में हम देखते हैं मृत्यु, हर एक को मृत्यु मृत्यु मृत्यु, उसके बीच एक मनुष्य है जो मृत्यु नहीं पाता है। He was seeing people die all around him. वो अपने चारों ओर लोगों को मरते देख रहा था। And he had faith for something that nobody had experienced. और उसके पास एक ऐसा विश्वास था जिसका अनुभव कभी किसी ने नहीं लिया था। By faith, he did not see death. विश्वासी के द्वारा उसने मृत्यु को नहीं देखा। He walked with God वह परमेश्वर के साथ चला and he said, God, why should I die like all these other people? और उसने कहा, परमेश्वर मैं क्यों मरूं, इतने लोग जब मर रहे हैं, Can't you just take me up? क्या तू मुझे ऊपर नहीं उठा ले सकता? Imagine having faith for something that nobody had ever experienced till that day. आप विचार कीजिए ऐसे विश्वास के विषय में जो उन दिनों तक, उस समय तक किसके पास भी नहीं था। You know, when you walk with God, God will give you experiences that other people don't have. अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसे अनुभव देगा जो किसी औरों के पास नहीं रहेंगे। Now we can apply that spiritually. और इसी को हम आत्मिक रीति से लागू करेंगे। Let's talk about spiritual death. हम आत्मिक मौत के विषय में देखेंगे। Spiritual death is the result of sin. आत्मिक मौत पाप का प्रमाण है। I don't mean the final death in hell. That is called the second death. वो नरक में मृत्यु, उसको दूसरा मृत्यु कहा गया है, उस मृत्यु के विषय में नहीं कहता हूँ। I'm talking about being spiritually dead. मैं आपसे उस विषय में कहता हूँ आत्मिक रीति से मरा हुआ रहना। Believers can be like that. विश्वासी ऐसे रह सकते The हैं। Lord told the elder in Sardis in Revelation 3 verse 1.
प्रकटीकरण के 3 अध्याय और पहले वचन में सार्दिस की कलीसिया के दूत से परमेश्वर कहता है You- अगुए से कि तू मरा हुआ है, You're a believer. तू विश्वासी है, You have a name that you're alive, तुझे एक नाम है कि तू जीवित है, but you're dead. पर तू मरा हुआ है। He wasn't dead physically. वो शारीरिक रूप से मरा हुआ नहीं था, He was a believer who was spiritually dead. वह विश्वासी था लेकिन आत्मिक रीति से मरा हुआ He था। was a leader of a church who was spiritually dead. वह एक कलीसिया का अगुआ था लेकिन आत्मिक रीति से मरा हुआ था। And the whole church was spiritually dead. पूरी कलीसिया आत्मिक रीति से मरी हुई थी, But they talked about being born again. पर वे नए जन्म के विषय में बातें करते In थे। the first century, everybody talked about being born again. पहले शताब्दी में हर एक लोग नए जन्म के विषय में बातें करते Just थे। like today, so many people speak about being born again. जैसे आज भी कई लोग नए जन्म के विषय में बातें करते रहते हैं। In the first century, almost everybody spoke in tongues, पहली शताब्दी में लगभग सभी लोग अन्य भाषा में बातें but they were करते थे, spiritually dead. पर वे आत्मिक रीति से मरे हुए थे। I've seen a lot of people who say they are born again who are spiritually dead. मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, जो कहते हैं हमारा नया जन्म हुआ I've है। seen a lot of people who speak in tongues who are spiritually dead. मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो अन्य भाषा में बातें करते हैं लेकिन आत्मिक रीति But से मरे they हुए हैं। imagine that they are filled with the Holy Spirit. पर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे आत्मा से भरे हुए हैं। One of the clearest marks that they are spiritually dead is they love money so much. उनका एक निशानी यही है कि वो पैसे से ज्यादा प्रेम करते हैं। इस तरह से उनका निशानी बन जाता है कि वे आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। They get angry so much. वे कितना जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। The Spirit can give them other tongues but cannot control their mother tongue. What type of spirit is that? पवित्र आत्मा उनके अन्य भाषा पर नियंत्रण रख सकता है कि उनकी मातृभाषा पर नियंत्रण नहीं रख सकता। ये कौन सा पवित्र आत्मा You है? know what happened to me when God filled me with the Holy Spirit? आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ जब पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने मुझे भरा, And I began to speak in other tongues. I began to speak in unknown तब tongues. मैं अन्य भाषा में जब बात करने लगा, Something happened. God began to control my mother tongue also. That's how I knew it was really the Holy Spirit. तब मैंने पवित्र आत्मा को जाना जब परमेश्वर उस पश्चात मेरे अन्य भाषा के साथ मेरी मातृभाषा को भी नियंत्रण में लेने लगा। Evil spirits can give you other tongues, but they cannot control your mother tongue. दुष्ट आत्माएं आपको अन्य भाषा दे सकती हैं और उन पर ताबा ले सकती है, लेकिन आपके मातृभाषा पर It's ताबा नहीं ले possible सकती। for believers to be spiritually dead. ये हो सकता है एक विश्वासी आत्मिक रीति से मरा हो। So, where you see spiritual death, death, death all around you. और जब आप देखते हैं आप आत्मिक रीति से सब जगह मरण मरण और मरण। To have faith like Enoch is to believe, Lord, if I walk with you, I can overcome this spiritual death. हाँ, परमेश्वर पर इस तरह का हनोक के जैसा विश्वास करना हमें आत्मिक मृत्यु से बचा सकता है। It says he by faith he was taken up so death couldn't touch him. और हनोक के विषय में कहा गया कि विश्वास के द्वारा उसको उठा लिया गया और मृत्यु की उस पर प्रभुता नहीं And हुई। he had a testimony, Hebrews 11:5, that he pleased God. और इब्रानी 11 अध्याय इसके 5वें वचन में एक साक्ष्य उसके विषय में कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। Why couldn't the other people walk with God? क्यों बाकी के लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल सके? There were thousands of people on the earth those days. उन दिनों में हजारों लोग पृथ्वी पर थे, They didn't have an interest in walking with God. उनको रुचि नहीं था परमेश्वर के साथ चलने It's के लिए। because this one man had a desire. उस एक मनुष्य हनोक के पास इच्छा थी He believed in judgment. और वह न्याय पर विश्वास करता था, And he may have told other people और उसने अलग और लोगों को भी बताया होगा that when my son dies, judgment is going to come. मेरा बेटा जब मरेगा तब जगत का न्याय होगा। They'd have thought this guy's got a bit screw loose. He was all right till he was 65 years old. Something happened. और उस समय लोगों ने यह सोचा होगा इस मनुष्य का बुद्धि भ्रष्ट हो गया या वो गलत कह रहा है, जिसको हम कहते हैं सठिया गया है। As if his son is so important that when his son dies, judgment is going to come. और इसके लिए इतना पुत्र महत्व का है कि जिस दिन इसका पुत्र मर जाएगा और जगत का न्याय होगा। So they laughed at him. और वे उस पर हंसते थे, But he walked with God. लेकिन वो परमेश्वर के साथ And he चला pleased God. और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। I want to say to you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, this is the testimony he had before he was taken up. उसके पास ऐसी यह गवाही थी जब See- वह उठा लिया गया उससे See what पहले। it says. Hebrews 11:5. इब्रानियों इसका 11 अध्याय 5वां The वचन last कहता है, part. आखिरी का भाग, Before he was taken up, he had this testimony from God that he was pleasing to God. विश्वासी से हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वह मृत्यु को न देखे, उसका फिर पता न चला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके लिए यह गवाही दी गई थी कि उठाए जाने से पूर्व वह परमेश्वर को प्रिय था। God gave a testimony. परमेश्वर ने वहां एक गवाही दी, He pleasing me, उसने मुझे प्रसन्न किया है and I'm going to take him up. और मैं उसे उठा लेने वाला हूँ। Listen to these words. इन शब्दों को सुनिए, Before he was taken up, उसके उठाए जाने से पहले he had this testimony उसके पास यह साक्ष्य था, that he was pleasing to God. वह परमेश्वर को प्रसन्न करता था। As a Christian, do you believe you're going to be taken up when Christ comes?
एक मसीह होने के नाते आपको क्या यह विश्वास है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब आप उठा लिए जाओगे? What is going to be your testimony before you're taken up? आपकी गवाही क्या होगी आपके पुनरुत्थान होने से पहले? That you pleased God. कि आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया? When I was a young boy, जब मैं एक जवान था, my father used to take me in Delhi to watch the Republic Day parade. मेरे पिता मुझे दिल्ली में आज़ादी के दिन का परेड दिखाने के लिए ले जाता था। That was January the 26th every year. रिपब्लिकन डे 26 जनवरी हर साल। And I would see the Paramveer Chakra, the highest military honor being given to और some परमवीर चक्र military people. मिलिट्री के लोगों को परमवीर चक्र ऐसा एक पुरस्कार That is सबसे महत्व का और ऊंचे पद का दिया जाता था। Somebody would come without a leg or without a hand. कोई एक आता था बिना किसी टांग के और हाथ के, You know, they were wounded in battle. और वे लड़ाई में घायल हो जाते And थे। then one man would read out. He would read out what this chap did. हाँ, और एक मनुष्य उसके विषय में जो ऐसा पुरस्कार पाने पर होता था पढ़ता था, And then the president would come and put the medal on him. और देश का राष्ट्रपति आकर उसे एक मेडल पहनाता था। Whole country would, all the people there would be watching. पूरे लोग वहां उसे देखते होंगे। What a great honor. कितना बड़ा महान सम्मान है। And I thought of that as a picture of when Jesus comes again. और तब मैं सोचता था यह एक दृश्य होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। And the Lord is going to call, not everybody, one or two here and there. यहाँ वहां से प्रभु यीशु मसीह कुछों को बुलाएगा, सबको नहीं। He says, my reward is with me to give every man according as his work shall be. और प्रभु यीशु कहता है मेरे पास हर एक को उसके काम के अनुसार देने को प्रतिफल है। And Enoch is going to come. Enoch will come. और हनोक आएगा। What's his testimony? What are they going to read out? और उसके लिए क्या पढ़ा जाएगा? उसका साक्ष्य क्या था? 300 years he walked with God. 300 साल वह परमेश्वर के साथ चला। He didn't bother about what other people thought about him. उसने इस बात की चिंता नहीं की कि लोग उसके विषय में क्या कहते हैं। He only wanted to please God. वह केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। People made fun of him. लोगों ने उसका मजाक किया, They troubled him. उसको सताया, It didn't make any difference. ये उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। In humility, he walked with God. नम्रता में वह परमेश्वर के साथ चला। Only humble people can walk with God. केवल नम्र लोग परमेश्वर के साथ चल So सकते हैं। I know Enoch must have been a very humble man. मैं ये विचार करता हूँ कि हनोक निश्चय ही एक बहुत नम्र व्यक्ति He रहा preached होगा, strongly against sin. क्योंकि उसने पाप के विषय में बहुत गंभीरता से सिखाया और प्रचार किया, And he pleased God. That was his testimony. और उसकी साक्ष्य यह थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। No testimony of how much money he made or what all he accomplished on this earth. उसने इस धरती पर क्या क्या काम पूरा किया या कितना धन संपत्ति कमाया, ऐसा कोई गवाही नहीं। He pleased God for 300 years. उसने 300 साल तक लगातार परमेश्वर को प्रसन्न किया। Dear brother and sister, प्यारे भाई और बहनों, if you have that testimony before you're taken up, आपके उठाए जाने से पहले अगर आपके पास ऐसी गवाही है, you'll discover in the final day that's the most useful way you could have lived on this earth. आप अंत के दिन तब जानोगे कि ऐसा तरीका, ये रास्ता सबसे लाभदायक था इस पृथ्वी पर जीने का। And such people will influence others. ऐसे ही लोग दूसरों को भी प्रभाव करते हैं। Not everybody. हर एक नहीं। There were a lot of people around, they didn't bother about Enoch. बहुत से लोग हनोक के आजू बाजू थे, लेकिन उसके विषय में वे चिंता नहीं करते थे, सोचते नहीं थे। I don't even know whether his wife was interested in walking with God. मैं ये भी नहीं जानता कि उसकी पत्नी हनोक की परमेश्वर के साथ चली या This नहीं। Methuselah, he didn't walk with God either. मतुशेला उसका बेटा भी परमेश्वर के साथ, He didn't walk with God. वो परमेश्वर के साथ नहीं चला। They had a very godly father, उनके पास एक बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर का जन पिता था। turn to Genesis 5. उत्पत्ति इसके 5वें अध्याय में हम फिर से पढ़ेंगे। It says, Methuselah, verse 25, had a son called Lamech. 25वें वचन में हम पढ़ेंगे। 5:25. 5:25 में, जब मतुशेलह 187 वर्ष का था तब उससे लेमेक उत्पन्न हुआ। And Lamech, verse 28, 28वां वचन, had a son whose name, verse 29, was Noah. और लेमेक उसके पुत्र का नाम, 29वें वचन है, उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। So Methuselah was the grandfather of Noah. तो मतुशेलह नूह का दादाजी था। Methuselah was 369 years old मतुशेलह 369 वर्ष का था and Noah was born. जब नूह जन्म लिया।
by the time Enoch had died. और Enoch had been taken up. Enoch had उस been समय taken up. तक हनोक उठा लिया गया था, He was not alive when Noah was born. वो वहां नहीं था जब नूह का जन्म हुआ। But Noah grew up as a little boy, 10 years old. Noah grew up as a little boy. नूह एक छोटा बच्चा बड़ा हुआ, Maybe when he was 10 or 12 years old. हो सकता है वो 10 या 12 साल का रहा होगा, He went and sat on his grandfather's lap हो सकता है वो अपने दादाजी के गोद में जाकर बैठा होगा and said, Methuselah, grandpa, tell me, और उसने यह हो सकता है कहा होगा, मतुशेला मेरे दादाजी, I heard that your father walked with God. मैं ये सुनता हूँ कि आपका पिताजी, मेरा परदादा परमेश्वर के साथ चला, Tell me, how is that? ये कैसा हुआ? Can you tell me what type of person your father was? मुझे बताइए आपका पिताजी किस तरह का मनुष्य था? And this little boy had a desire to know how Enoch walked with God. और इस छोटे से बच्चे में एक इच्छा थी जानने की कि हनोक कैसा चला And परमेश्वर के साथ। Methuselah would have told him. मतुशेला ने हो सकता है उसे बताया होगा। He said, Noah, my father was the most wonderful man I have ever met. और उसने कहा होगा नूह को कि मेरा पिता एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति था, He was such a patient, humble man. वो कितना धीरजवान और नम्र व्यक्ति था, But a strong preacher against sin. लेकिन पाप के विषय में बहुत गंभीरता से दृढ़ता से प्रचार करने वाला He व्यक्ति। feared no man. वो किसी मनुष्य से नहीं डरता था, He never wanted to please any human being on the earth. उसने पृथ्वी पर किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया, He had no interest in money. उसका कोई भी पैसे में रुचि नहीं था, He only wanted to walk with God every day. वह केवल यही चाहता था हर दिन में परमेश्वर के साथ चलूं। He took care of his family. पर वो अपने परिवार की भी देखभाल He करता worked था, hard to take care of us. उसने हमारी देखभाल करने के लिए बहुत कष्ट और मेहनत किया, But he walked with God. पर वो परमेश्वर के साथ भी चला। And as Noah grew up, और जैसा नूह बड़ा हुआ, there came in his heart a desire उसके हृदय में एक ऐसी इच्छा आई, which nobody else had. वो किसके पास भी नहीं थी, I want to walk with God. मैं भी परमेश्वर के साथ चलूंगा। And you know what happened? तब देखते हम क्या हुआ। See in Genesis 6 verse 9, 6वां अध्याय उत्पत्ति का उसके 9वें वचन में the last part. आखिरी का भाग, नूह Noah walked with God. परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। He's the second man who walked with God. ये दूसरा मनुष्य था जो परमेश्वर के साथ चला। And do you know what he preached? और आप जानते हैं उसने क्या प्रचार किया? Judgment. न्याय। God is going to judge the world. परमेश्वर जगत का न्याय करेगा। God's told me to build an ark. तो परमेश्वर ने मुझे एक जहाज बनाने को कहा है। So much sin in the world, God's going to judge it. कितना जगत में पाप है, परमेश्वर इसका न्याय करेगा। Now, Enoch did not influence many people, हनोक ने बहुत से लोगों को प्रभावित नहीं किया, but he influenced his great grandson. लेकिन उसके ऊपर प्रभाव था, उसका प्रभाव अपने परपोते पर हुआ। So we may not influence everybody if we walk with God, तो हम हो सकता है परमेश्वर के साथ चलने पर सबको प्रभावित नहीं करें, but you may influence some 12-year-old boy लेकिन हो सकता है कि आप छोटे 12 वर्ष के बच्चे को प्रभावित कर दे, who looks at you जो आपकी ओर देखता है and says, I want to be like that man of God. और वह कह सकता है कि मैं ऐसे मनुष्य परमेश्वर के जन के जैसा बनना चाहता हूँ। Do you know that God wants you to be like that, brother and sister? क्या भाई और बहनों आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे बनो? Jesus said, the last days will be like the days of Noah. परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। We are approaching the second coming of Christ. हम परमेश्वर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की ओर बढ़ रहे हैं, It's very, very close. हम बहुत ही उसके निकट पहुंच गए हैं। There are only two places in the world mentioned in relation to the last days. केवल बाइबल में दो ही ऐसे वचन हैं जो अंत के दिनों के विषय में संबोधित करते हैं। One is Jerusalem. पहला यरूशलेम, Jesus said in Luke 21, यीशु ने लूक के 21वें अध्याय में कहा, verse 20, 20वां वचन, when you see Jerusalem surrounded by armies, you know its desolation is at hand. परंतु जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तब जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। And Jerusalem, verse 24, will be trampled underfoot, the last part of verse 24, by the other nations till the times of the Gentiles are fulfilled. और 24वें वचन के आखिरी के पद जगह में हम देखेंगे कि जब तक गैर यहूदियों के समय पूरा न हो यरूशलेम गैर यहूदियों के पैरों के तले रौंदा जाएगा। Jerusalem was ruled by heathen nations, by non-Jewish nations, until 1967. 1967 तक यरूशलेम अन्य जातियों से उसका अन्य जातियों का उसका ऊपर राज्य था। That was fulfilled in 1967. 1967 में ये पूरा हुआ। The second place mentioned in the Bible
दूसरी जगह बाइबल में यह दर्शाई गई है in relation to the last days अंत के दिनों के संबंध में is Iraq. इराक के विषय में। Revelation chapter 9, रेवलेशन प्रकटीकरण इसका 9वां अध्याय verse 14. 14वां वचन। The Lord says, release the demons that are tied up near the river Euphrates. 9:14 Hmm. वह छठवें सरदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था उन 4 सरदूतों को जो फरात महानदी के निकट बंधे हैं खोल दे। That's repeated again in chapter 16 16वें अध्याय में यह फिर से दोहराया गया है and verse 12. और 12वें अध्याय में। And in both places, if you read it, और दोनों जगह पर अगर आप ये पढ़ते it's हैं talking about war around the river Euphrates. River Euphrates, which you just read. 9:16. 9:16 में हम पढ़ते हैं 9:14. Yeah, that river. फरात नदी के That river goes through Iraq. वो रिवर नदी इराक से होकर बहती है There's going to be war around Iraq. और इराक के चारों ओर युद्ध होगी। We never heard about war in Iraq till about 6-7 years ago. 6-7 साल पहले हमने कब इराक के अंदर लड़ाई को Those सुना। are the only 2 places mentioned in relation to the last days. अंत के दिनों के विषय में केवल ये 2 ही जगह है जो बाइबल में दर्शाई गई है। We are living in the generation that is going to see the second coming of Christ. हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं जो शायद देखने वाली है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। You know what you should be doing? आपको पता है आपको क्या करते रहना चाहिए? You should be walking with God like Enoch. हनोक के जैसा आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। You should have a testimony that you are pleasing to God आपके पास एक ऐसी गवाही होनी चाहिए कि आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है before He comes to take us up. उससे पहले कि वो हमें लेने आए। What shall we say in conclusion? सब समेट कर हमें अंत में क्या कहना है? He who has ears to hear, let him hear. जिसके कान वह सुन ले के परमेश्वर क्या कह रहा Let's है। pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, पवित्र परमेश्वर, help us to understand the times in which we are living. हमें उन समय को समझने की समझ दे जो चल रहे हैं And to be ready for your coming. कि हम तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं। We humbly ask in Jesus' name. हम अपने आप को नम्र करें यीशु के नाम में। Amen. आमीन।